Give a brief sketch of give a brief brief sketch of sketch of Annie's life. ANNE Annie's life on the basis of give a brief sketch of Annie's life. ANNE. Okay, Annie's life on the basis of your study. On the basis of your study of the story. On the basis of your study of the story, comma, from the diary of Annie Frank. From the diary of Annie Frank. I repeat again. Give a brief sketch of Annie's life on the basis of your study of the story from the diary of Annie Frank. From the diary of Annie Frank को inverted commas में put कीजिए. This is the name of the lesson. Written? Yes. 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 Okay. Write down answer. Annie was born in Frankfurt. Annie was born in born B-O-R-N born in Frankfurt. Frankfurt का है the capital Frankfurt 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 in Germany. Germany G भी capital आएगा GERMANY Germany on 12 June 1929. कब हुआ था एनी का बर्थ? एनी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट. कहाँ हुआ था? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में. ऑन विच डेट? ऑन 12 जून 1929. Written, children? Yes. Yes. Okay. Write down. Full stop. When she was 4. जब वो 4 साल की थी, कॉमा, her parents went to live in Holland. उसके जो मम्मी पापा थे वो कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे रहने के लिए. When she was 4, comma, her parents went to P-A-R-E-N-T-S parents went to live in Holland. Went to live in L-I-V-E live in Holland. Holland का H भी कैपिटल रहेगा. H-O-L-L-A-N-D Holland. Full stop. For some time, comma, for some time, comma, for some time, comma, Annie lived with her granny. Granny मतलब grandmother. ठीक है? For some time, comma, Annie A-N-N-E Annie lived with L-I-V-E-D lived with her granny. G-R-A-N-N by granny. Full stop. Then in 1934, in 1934, comma, she also went to Holland. In 1934,
comma, she also went to Holland, HOLLAND. Mehak, don't put your fingers in your mouth. मुंह में डाल fingers बार बार, क्या हो रहा है? Please repeat again. Okay बेटा, I will repeat definitely. Mehak, sit properly. Fingers मत डालो मुंह में. आप, you're not a kid. आप नर्सरी में पढ़ते बच्चे थोड़ी ना हो, ऐसा कर रहे हो आप. ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग. एनी वॉज, जो स्पेलिंग नहीं आएगी वो पूछ लेना. एनी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट in Germany on 12 June 1929, full stop. When she was 4, her parents went to live in Holland for some time. Holland के बाद full stop है. For some time, Annie lived with her granny. कुछ टाइम के लिए जब उसके मम्मी पापा जो थे वो हॉलैंड चले गए थे, तो कुछ टाइम के लिए जो एनी थी वो अपनी दादी के साथ रहती थी. फुल स्टॉप. देन इन 1934, लेकिन 1934 में 1934 में शी ऑल्सो वेंट टू हॉलैंड. वो कहाँ चली गई? हॉलैंड चली गई. फुल स्टॉप. शी स्टार्टेड गोइंग टू, यस रिटन. Who was asking me? मुझे कौन पूछ रहा था? Yes, she has written. Yes, ma'am. Okay. She started going to a nursery school. देखिए, she started, STARTED, started going to a nursery school. उसने कहाँ जाना शुरू कर दिया? नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया. She started going to a nursery school. Stop. When she was 6, when she was 6, she joined another school. She joined another school. JOINED, joined another, ANOTHER, another school. Full stop. In the sixth form, sixth form, her teacher was Mrs. Kypris. Her teacher was Mrs. Kypris. K कैपिटल करना. KUPERUS. क्यों जो है वो मैं बीच में बता रही हूँ आपको कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, either that is in between the sentence but first letter is capital. The reason is that, what is the reason behind that? These are specific nouns. ये आपके जो है वो proper nouns हैं. Is it fine? ठीक है. हम गर्ल लिखते हैं तो गर्ल भी तो एक नाउन है, लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफिक नाउन, दिस इज कॉमन नाउन. लेकिन जब हम लिखेंगे दिव्यांशी, तब दिव्यांशी क्या है? दैट इज द स्पेसिफिक नेम. दैट्स वाई वहां पे हम डी कैपिटल लिखेंगे. जब हम लिखेंगे कि देयर आर 3 गर्ल्स इन द रूम, तब हम गर्ल्स का जी कैपिटल नहीं लिखते हैं. कि जब हम लिखेंगे कि दिव्यांशी, प्रियांशी एंड महक इन द रूम, आर इन द रूम, तब हम इन सभी के नेम्स का फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे. ठीक है. हॉलैंड हमने लिखा, तब हम हॉलैंड का एच कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं, हॉलैंड जो है वो स्पेसिफिक नेम है किसी सिटी का. इज इट फाइन चिल्ड्रन? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. In the sixth form, her teacher was Mrs. Kypris.
KUPERUS, मिसेस का M भी कैपिटल आएगा एंड क्यूप्रेस का K भी कैपिटल आएगा, फुल स्टॉप. The two were deeply attached to each other. लिखिए the two, पहले द लिखो फिर टू, TWO. द टू का मतलब है कि दोनों. कौन दोनों? मिसेस क्यूप्रेस जो कि टीचर थी और एनी. एनी और जो उसकी टीचर थी वो दोनों आपस में उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी. वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अटैच्ड थी. द टू वर डीपली attached, ATTACHED, spellings must not be incorrect. The two were deeply attached to each other, full stop. Annie continued living with her parents and elder sister. Annie continued, CONTINUED. Annie continued living, LIVING, living with her parents and elder sister. एनी कॉन्टिन्यूसली उसके बाद किसके साथ रह रही थी? अपने मम्मी पापा और अपनी बड़ी सिस्टर के साथ में, जो थी वो हॉलैंड में रह रही थी. एनी कॉन्टिन्यूड लिविंग विद हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, फुल स्टॉप. बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड. लेकिन उसका कोई भी सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड नहीं था. बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, TRUE, ट्रू friend. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So she decided to keep a diary. सभी को पता है क्यों उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था? Because she had no true friend. That's why she decided to keep a diary, and she wants to write all her experiences in her diary. But first experience what she has written in her diary, that was the experience of her school and of her teachers. यही था ना, उसने अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स का जो एक्सपीरियंस था वो उसमें उसने लिखा था, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. ठीक है. सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, DIARY. बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो कुछ और ही स्पेलिंग लिख देते हैं, DAIRY लिख देते हैं. दैट इज द रॉन्ग स्पेलिंग, वो कुछ और बनता है. डायरी, DI पहले आएगा. ठीक है, DAIRY मत लिखना, DIARY, डायरी, फुल स्टॉप. At that time, she was only 13 years old. At that time, she was only 13 years old. और जब उसने डायरी रखने की सोची थी, उसने सोचा था कि I will write about my own personal experiences in the diary. What was the age of Annie at that time? At that time she was 13 years old. कितने साल की थी वो? 13 years old की थी जब उसने डायरी रखने के बारे में सोचा था. Okay, at that time, she was only 13. 13 की स्पेलिंग करेक्ट लिखना, THIRTWN, 13 years old. Full stop. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shagun Prashar, having registration number 2000. Yes, ma'am. Hanji, read out the full answer of this question. Along with question. Firstly, read out the question and after that the answer. What have you written? Don't keep the class. He has left the class. Really, it's very shameful. What are you doing in the class? Muskan Kondal. 3 3 to
Turn on your camera firstly. बेटा Yes, ma'am. just giving the class whenever I ask something from you. मुझे आपसे ही पूछना है, मैं किससे पूछूंगी? क्यों क्लास लीव कर देते हो? आपकी पिटाई हो रही है कि क्लास के बीच में? आपसे पूछा ही जा रहा है ना, जो आपने लिखा है वो है, मुझे देखना है कि आप लिखते हो या नहीं लिखते हो, सही लिखा है या गलत लिखा है। इतना सब तो राइटिंग हमारा भी बनता है। तन्वी, तन्वी सेठी, unmute Yes, yourself ma'am. first. Read out the answer, beta. Yes, ma'am. Question number 2. Give a brief sketch of Annie's life on the basis of your study of the story from the diary of Annie Frank. Answer. Annie was born in Frankfurt in Germany on 12 June 1929. Full stop. When she was 4, her parents went to live in No Holland. need to say full stop. तन्वी, कोई जरूरत स्टॉप बोलने की, वो मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि कहीं आप लोग मतलब गलत ना लिख दो, ठीक है? आप जब रीड आउट करोगे आप फुल स्टॉप बीच में नहीं बोलोगे। Yes, ma'am. For some time, he lived with her granny. Then in 1934, she also went to Holland. She started going to a nursery school. When she was 6, she joined another school. In the sixth form, her teacher was Mrs. Grippers. The two were deeply attached to each other. Annie continued living with her parents and elder sister, but she had no true friends, so she decided to keep a diary. At that time, she was only 13 years old. ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। बेटा जब भी आप लोगों से पूछा जाता है ना, रीड आउट करने को बोला जाता है, तो उसमें मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर मैं 10 बार बच्चों से उस चीज को डिक्टेट करवा रही हूँ तो आप 10 टाइम्स सुन 10 टाइम्स सुनोगे तो 10 लाइंस में से ना 4 लाइंस आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है क्लास के बीच में। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। ध्यान रखना, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो हमने किया, ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, जो हमने अभी किया, वो एनी की लाइफ का स्केच हमने उसमें लिखा। अब हमसे पूछा है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। अब हमने एनी का कैरेक्टर स्केच बताना है। ऊपर हमने एनी की लाइफ का बताया, वो कहाँ पे रही, क्या उसने किया। कैरेक्टर स्केच में लिटिल बिट चेंजिंग होगी, लिटिल बिट, ठीक है? लिखिए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, एंड आई हैव पब्लिश्ड दिस चैप्टर। हैव यू चेक्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैंने ये चैप्टर पब्लिश कर दिया है, so you will write all the question answers of lesson 4 from there, okay, with correct spellings. Write a brief, BRIEF, brief character sketch, CHARACTER, character, dash लगाइए छोटा सा, sketch, SKETCH, of Annie, ANNE, Annie का एक कैपिटल आएगा। Write down the answer. Annie was an intelligent girl. Write down. Annie was an intelligent, INTELLIGENT, intelligent girl. Full stop. She could think and write very clearly. She could, COULD, could think, 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 and write, WRITE. She could think and write very clearly, VERY, very clearly, CLEARLY,
वो बहुत अच्छे से सोच भी सकती थी और बहुत ही स्पष्ट वो लिखती भी थी। उसके जो थॉट्स थे वो बहुत ही क्लियर होते थे, बहुत ही मतलब इतने अच्छे होते थे कि सामने वाला बहुत इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकता था। मतलब ऐसे बचकाना वाले नहीं होते थे कि कुछ भी वो लिख देती थी, कुछ भी बोल देती थी, है ना। फुल स्टॉप। शी हैड मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ। शी हैड मैनी friends, friends, friends to play with. She had many friends to play with, full stop. But but she had no close friend. But she had no close friend, 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 full stop. So she felt lonely. इसलिए वो अकेला महसूस करती थी. So she felt lonely. So she felt lonely. 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 Full stop. Then she had an idea. Then she had an idea. 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 Full stop. She felt that she felt, F-E-L-T, felt that paper has more patience than people. Yes, this was a quotation given by Anne Frank na in the lesson. Anne Frank ने बोला था ना ये. She felt that paper has, P-A-P-E-R, paper has more, M-O-R-E, more patience, P-A-T-I-E-N-C-E, patience than, T-H-A-N, than people, P-E-O-P-L-E, people, full stop. So, comma, she thought of keeping a diary. So, comma, she thought of, T-H-O-U-G-H-T, thought of keeping, K-E-E-P-I-N-G, keeping a diary, D-I-A-R-Y. So, she thought of keeping a diary, full stop. She gave it the name of Kitty. क्या नेम दिया था उसने अपनी डायरी को भी? मैम किटी. Yes, Kitty. She gave it the name of Kitty. Full stop. The first entry she made in her diary was on 20 June 1942. I repeat again. सबसे पहले उसने अपनी डायरी में कब लिखा था, कौन सी डेट को उसने सबसे पहले उसमें नोट डाउन किया था? 20 जून 1942 को. तो लिखिए the first entry she made in her diary, the first entry she made in her diary was on 20 June, 1942. 20 June, 1942, full stop. In it, she wrote about, W-R-O-T-E, she wrote about, A-B-O-U-T, about her days at school. About her days at school, full stop. We know from her writing, that she was a sweet and intelligent child.
We know from her writing that she was a sweet and intelligent child. I repeat again the answer. Write a brief character sketch of Annie. This was the question and the answer is Annie was an intelligent girl. एनी जो थी वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ पढ़ने में होशियार होना नहीं होता है। इंटेलिजेंट का मीनिंग होता है कि आप हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो, कैसे सारी बातों को आप कैसे सारी की सारी जो भी सर्कमस्टांसेस रहते हैं कैसे उनको मैनेज करते हो, ठीक है, दैट इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ उसको मतलब कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा है और बात करने के उसको मैनर्स नहीं है, उसे जो है वो खाना खाने का पता नहीं है, हिज वे ऑफ टॉकिंग इज टोटली रफ, उसे हम इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। इंटेलिजेंट मीन्स कि आप हर एक फील्ड में इतने पोलाइट हो, इतने मतलब पेशेंस रखते हो आप कि आपको किसी भी चीज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप हैंडल कर लेते हो, आप उसमें एडजस्ट कर लेते हो खुद को, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट। ओके, तो एनी जो थी, तो हम कैसे बोल सकते हैं एनी इंटेलिजेंट थी? ऑब्वियस सी बात है एनी इंटेलिजेंट थी कि वो इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी दादी के साथ भी रही, दादी के साथ रहने के बाद वो अपनी मम्मी पापा के पास गई, वहां पे उसका जो टीचर थी उसके साथ भी उसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, मतलब हर कहीं पे वो भी रिस्पेक्ट दे रही है, उसको भी रिस्पेक्ट मिल रही है, वो हर किसी के आइडियाज को रिस्पेक्ट करती है, अपने आइडिया शेयर करती है ना। तो एनी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एनी जो थी वो एक बहुत ही होशियार लड़की थी। शी कुड थिंक एंड राइट वेरी क्लियरली, वो बहुत ही अच्छे से सोचती थी। सोचना मतलब किसी भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू को लेकर चलना, हमेशा यही नहीं सोचना कि हम जो है वो ये काम कर लेंगे, हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मतलब टाइम हमारी लाइफ में आता है कि हमें लगता है कि ये जो काम है ये बहुत इजी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यूजुअली आप स्कूल में आप तो करते होंगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि टेस्ट दिया जाता है और आपको लगता है कि लर्न करने से बेटर है फटाफट चीटिंग करके उसको लिख दो। पल भर के लिए वो चीज बहुत अच्छी लगती है हमें कि ठीक है टीचर से डांट पड़ेगी नहीं, मार पड़ेगी नहीं, हमें मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। पर आप कभी भी उसका नेगेटिव जो एक रहता है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट जो रहता है नेगेटिव, जो कि आपकी पूरी जिंदगी ओके, तो हम उस चीज को सिर्फ पल भर के लिए सोचते हैं कि हम जो है वो इस तरीके से टेस्ट दे देंगे, हम जो है वो पहले कुछ बच्चे करते हैं ना पहले लिख के ले आते हैं, तो उन्हें वो ये सोचते हैं कि टीचर को हम बेवकूफ बना रहे हैं, पर एक्चुअली टीचर को बेवकूफ नहीं बना रहे होते हैं, वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास वो विजन ही नहीं होता, वो कभी सोचते नहीं है कि उसका जो नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है वो क्या है। जैसे इस टाइम पे कुछ बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, इन बच्चों को ये लग रहा है स्कूल्स लगेंगे नहीं, हम प्रमोट हो जाएंगे, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता, हमारी पिटाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अच्छी बात है, लेकिन आज से 4 साल के बाद फील्ड में आप जाएंगे, टीचर नहीं जाएगा, कि तब आप टीचर को लेने आओगे स्कूल में कि भाई आपने मेरी 10th करवाई है, मैम आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, चलिए अब मुझे कुछ नहीं आ रहा। होगा ऐसा कभी लाइफ में? No, ma'am. फॉल्ट इज योर्स, आप नहीं पढ़े, गलती आपकी है, आपने क्लासेस नहीं लगाई, आपकी मिस्टेक है, वो लॉस होगा वो आपका होगा, मार्क्स का कुछ नहीं है, मार्क्स आ जाते हैं आज के टाइम में, 90% लेना इट्स वेरी इजी गेम, इतनी सी बुक होती है, इसको रट लो मार्क्स आ जाएंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट विल यू डू? इस टाइम अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम नॉट शोइंग यू माई डिग्री दैट आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश, कि मैं वो बता के आपको सेटिस्फाई करवा सकती हूँ कि आप लिख लो, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो हम किसे बोलेंगे? थिंक का मतलब हुआ यहाँ पे शी कुड थिंक एंड राइट वेरी क्लियरली। लिटरेचर में जो भी वर्ड होता है ना उसके बहुत ही डीप मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे क्यों एनी को बोला गया है कि एनी फ्रैंक एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हुई है, उसके पूरा का पूरा अगर आपने कभी स्टडी करना होगा ना तो नोवेल पढ़िएगा, ठीक है।
जो स्ट्रगल उसका है, कितनी अच्छी राइटर हो रही है, क्या क्या उसने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं, वो सारी आप पढ़ सकते हो फ्री टाइम में। तो थिंक, मतलब किसी भी काम को आप कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जरूर सोचिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसका गलत जो रिजल्ट होगा वो क्या हो सकता है, उससे हमें कितना लॉस हो सकता है, हमारे लिए वो चीज कितनी आगे चलकर जो है वो मतलब हार्मफुल हो सकती है। ठीक है। तो जो एनी थी, शी कुड थिंक एंड राइट वेरी क्लियरली, वो बहुत ही स्पष्ट लिखती थी। लिखना मतलब उसकी जो राइटिंग्स थी, उसके जो जो भी उसने राइटिंग्स दी, चाहे वो उसने अपना प्रोज में दिया, पोइट्री में दिया, जो भी उसने दिया वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर उसने लिखा। ठीक है। शी कुड थिंक एंड राइट वेरी क्लियरली। शी हैड मैनी फ्रेंड्स टू प्ले। पढ़ा है आपने चैप्टर में कि उसके पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थे। ऑब्वियसली बात है, आप जहाँ पे भी रहते हो, अपने घर पे रहते हो, आपके सराउंडिंग में, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके स्ट्रीट में, आपके मोहल्ले में बहुत बच्चे होते होंगे, आप उनके साथ खेलते होंगे। सेम कंडीशन विद एनी। एनी के पास भी बहुत से खेलने को हुआ करते थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स उसके होते थे, बट शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। लेकिन उसका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। बेस्ट फ्रेंड जरूरी नहीं है क्लासमेट ही होता है, जरूरी नहीं है सेम एज का ही होता है। आपकी मम्मी भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, आपके पापा आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपका टीचर आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपकी बुक आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। ठीक है। तो एनी को अपनी लाइफ में ऐसा कोई नहीं लगता था जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर सकती थी। सो शी फेल्ट लोनली, इसलिए वो अपने आप को अकेला मानती थी। इतने ज्यादा फ्रेंड्स होने के बावजूद, मम्मी पापा सिस्टर दादी टीचर होने के बावजूद भी शी फेल्ट लोनली। ओके, रजनीश काइंडली बी अटेंटिव इन द क्लास। रजनीश 82, Yes, ma'am. बी अटेंटिव इन द क्लास बेटा। देन शी हैड एन आइडिया। जब वो अकेला फील करती थी तो उसको एक बहुत ही अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आया। She felt that paper has more patience than people. उसने ये कोटेशन दी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसने क्या कोटेशन दी कि जो एक कागज होता है, जो एक पेपर होता है, उसमें ज्यादा संयम होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एक पेज में, एक डायरी में कुछ भी लिख देंगे अपनी जिंदगी से रिलेटेड, तो वो राज, वो सीक्रेट तब तक सीक्रेट रहेगा जब तक हम खुद उस डायरी को किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे या कोई उस डायरी को खोलेगा नहीं। अदरवाइज जब तक वो डायरी बंद है, वो किताब, वो कागज हमारी सब बातों को जो है वो क्या रख रहा है, एक तरह से सीक्रेट रख रहा है। तो जो कागज है उसमें ज्यादा संयम होता है एज कंपेयर टू पीपल। सो शी थॉट ऑफ कीपिंग अ डायरी। इसलिए उसे लगा कि बहुत बढ़िया है कि इंसान के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है मैं एक डायरी ही रख लूं, एक डायरी में लिखना शुरू करूं जो भी मेरी लाइफ में, चाहे वो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हैप्पी मोमेंट्स हैं, चाहे वो वरीज हैं, वो मैं सारे उस डायरी में लिखना चाहती हूँ। शी गेव इट द नेम ऑफ किटी। और उस प्यारी सी डायरी को उसने क्या नेम दिया? किटी नेम दिया। द फर्स्ट एंट्री शी मेड इन हर डायरी was on 20 जून 1942। उस डायरी में सबसे पहले जो उसने एंट्री की, सबसे पहले जो उसने लिखा, और लिखा क्या था वो आपको पता है। शी हैज रिटन हर अबाउट द मीटिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन हर स्कूल। वही था ना जो जिसमें उनका टीचर्स विल डिसाइड दैट विच स्टूडेंट्स विल जस्ट गो इन द नेक्स्ट क्लास एंड विच विल रिमेन इन द प्रीवियस। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यानी पहली बार उसने अपनी डायरी में कब लिखा था? 20 जून 1942 को, आई डोंट नो, आई थिंक 41, 42, 42 जो भी बोलते हैं, 1942 में उसने जो था वो फर्स्ट एंट्री की थी। इन इट शी रोट अबाउट हर डेज एट स्कूल। और उस डायरी में उस दिन उसने अपने स्कूल के दिनों के बारे में लिखा था। We know from her writing that she was a sweet and intelligent child. और जब हमने उस पूरी स्टोरी को पढ़ा तो हमें पता चला कि उसके थॉट्स कितने अच्छे थे। उसने लिखा था ना कि कोई भी बच्चा, अगर टीचर कोई टॉपिक दे रहा है तो कोई भी बच्चा कहीं से भी 2-3 पेज भर सकता है टीचर को सेटिस्फाई करवाने के लिए, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। बट आई वॉन्ट टू गिव प्रॉपर रीजन ऑफ टॉकिंग टू माई टीचर। उसका टीचर उसको डांटता था कि आप क्यों इतनी ज्यादा बातें क्लास में करते हो। तो उसने क्या बोला था?
कि मैं ऐसे ही फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू डू एनी फॉर्मेलिटी विद द टीचर, आई जस्ट वांट टू गिव अ प्रॉपर लॉजिक टू माय टीचर।